پشاور میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ سرچ آپریشن کے باعث دہشت گردوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں، پولیس کا موقف۔ بھارت میں انتہا پسندی کے شعلے کرکٹر شامی کے گھر پہنچ گئے۔ گائیں ذبح کرنے کے الزام میں پہلے بھائی کو پکڑا، اب اہل خانہ کو ہراساں کیے جانے لگا۔ پنجاب میں پھر شدید دھند چھائی، پریشانی لائی۔ اوکاڑا، ساہیوال اور پتوکی میں کئی مقامات پر حد نگاہ 100 میٹر رہ گئی۔ ڈرائیورز احتیاط سے گاڑیاں چلانے میں مصروف۔ مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو کے دارالحکومت اوگاڈوگو میں غیر ملکیوں کے زیر استعمال ہوٹل پر مسلح افراد کا حملہ، 20 افراد ہلاک، وزیر سمیت 33 پر یرغمالی رہا۔ کراچی میں گرفتار 4 افغان جاسوسوں کے اہم انکشافات، ملزمان کو کالعدم تنظیم کے کارندوں، سیکیورٹی فورسز اور مختلف مکاتب فکر کے افراد کو قتل کرنے کا ٹاسک ملا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے میدان سج گیا، 27 مخصوص نشستوں پر مقابلہ، پولنگ جاری۔ کراچی میں کلفٹن کے علاقے زمزمہ میں دواؤں کی دکان میں 4 ملزمان کی واردات، ڈکیتی کی CCTV فوٹیج جاگ کو موصول۔ ملتان میں دھڑ جڑی بہنوں کے آپریشن کے لیے حکمت عملی تیار، بچیوں کو آپریشن کے لیے لاہور منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھارت روانہ، ایشیا کپ T20 کوچی میں کھیلا جائے گا۔ کراچی رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، سائیں وزیر اعلیٰ مہمان خصوصی، ایک اہلکار کو سند الٹی پکڑا دی، خاتون اہلکار نے سلوٹ مارا تو ہاتھ ملا لیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید سستا، $29 فی بیرل پر آ گیا۔ اور خلا میں بین الاقوامی خلا اسٹیشن سے باہر برطانوی خلا نورد نے چہل قدمی کر کے نئی تاریخ رقم کر دی، ایک خلا نورد کا ہیلمٹ لیک ہونے کے باعث مزید واک روک دی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جاگ اور میں ہوں عبداللہ حسن اور میں ہوں وریشا ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید قائم علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب آئی جی صاحب کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں اور کچھ پولیس افسران نہیں ہوتے جس میں ایڈیشنل آئی جی ہیں اور دیگر ہیں، تو یہ سرف جنگ چل رہی ہے، یہ حقیقت ہے، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سوال جو کیا آپ نے، اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ آئی جی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بات کی تھی، ثانیہ صفورہ کے ملزمان گرفتار کیے، کراچی پولیس کی جو کلنگ ہوئی ہے اس کے ملزمان گرفتار ہوئے، ملٹری پولیس کی کلنگ ہوئی ہے اس کے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، بلدیہ میں رینجرز کے جوانوں کی کلنگ ہوئی ہے اس کے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ وہ تو خیر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن جو بھی سیریس آفینسز ہوئے ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں
और चालान भी हुए हैं केस, और काफ़ी कन्विक्शन भी हुई है। मैं अर्ज करूं, पहले जहां ये 2.5 साल पहले जहां कन्विक्शन का रेट था 10% या 8%, वो 27 से अब कोई 40% तक कन्विक्शन है। तो जी दाइश और टीटीपी में क्या फर्क है? दहशतगर्द हैं दोनों, तो दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं, तो आप ऐसे ये परवाह नहीं करें। रज़ाक़ाबाद ट्रेनिंग सेंटर में आज वज़ीर आला सिंध सईद क़ाइम अली शाह मेहमान खुसूसी थे और इस वक्त वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दहशतगर्दों की जानिब से मिलने वाली धमकियों के बाद पेशावर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। जी हां, पुलिस अफसरान का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से खौफजदा दुश्मन अनासिर धमकियां दे रहे हैं। एसएसपी ऑपरेशन पेशावर ने अज़म जाहिर किया है कि पुलिस धमकियों में नहीं आएगी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। ये अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें नाज़रीन कि दहशतगर्दों की जानिब से मिलने वाली धमकियों के बाद पेशावर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से खौफजदा दुश्मन अनासिर धमकियां दे रहे हैं। एसएसपी ऑपरेशन पेशावर ने अज़म जाहिर किया है कि पुलिस धमकियों में नहीं आएगी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। और अब आपको बताएंगे कि पेशावर में ऑपरेशन की कामयाबी दुश्मनों के सीने छन्नी कर रही है। धमकियां मिलने के बाद शहर के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। पेशावर में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला कामयाबी से जारी, दुश्मनों पर कपकपी तारी। दुश्मनों ने धमकियां देना शुरू कर दी, जिसके बाद पेशावर के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन की वजह से दुश्मन धमकियां दे रहे हैं। उधर चारसद्दा में स्पेशल पुलिस यूनिट ने दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द यारमत से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। पेशावर कैंट में सिक्योरिटी खदशात के बायस तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। मोहम्मद आकिब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद आकिब, दहशतगर्दी की धमकियों के बाद सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी पेशावर में सिक्योरिटी खदशात के बायस पहले पेशावर कैंट और नोतिया के करीब जो सरकारी और निजी स्कूल है उनको बंद कर दिया गया था और अभी ये इतलात सामने आ रही है। एसएसपी ऑपरेशन अब्बास मजीद मरवत के मुताबिक पेशावर के तमाम सरकारी व निजी स्कूल्स और कॉलेजेस जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और एक दिन के लिए ये तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस जो है इसको बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धमकिया मेज खतूत और कुछ थ्रेट्स मिली थी स्कूलों को, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दिया गया है। जबकि महकमे तालीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूलों का जायजा लेना भी शुरू कर दिया गया है। महकमे तालीम हुक्काम के मुताबिक जिन स्कूलों की सिक्योरिटी नाकिस होगी उनके खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया जाएगा। अभी जो महकमे तालीम और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उन्होंने स्कूलों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। कैंट के एरिया में स्कूलों का जायजा ले लिया गया है सिक्योरिटी का और इसके बाद सिटी के एरिया में भी महकमे तालीम और जिला इंतजामिया के हुक्काम जाएंगे और उनके सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। इस वक्त शहर के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वालिदैन परेशान है, स्कूल आए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, बच्चे भी अपने जो क्लासेस है उसको आदि में छोड़कर घरों के लिए रवाना। आपका बहुत शुक्रिया इस वाले से अपडेट करने के लिए। और यहाँ नाज़रीन आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि कराची के इलाके मंगोपीर कवारी कॉलोनी में रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन करके मुत्तादिद अफराद को हिरासत में ले लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद बताइएगा कितने अफराद को हिरासत में लिया गया है? जी देखिए, मंगोपीर डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर कंवारी कॉलोनी समेत दीगर मकामात पर ये जो है रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन करा, जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया और घर घर तलाशी के बाद बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद हैं जिनको हिरासत में लेके जो है नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और वहाँ से तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, कराची का इलाका है मंगोपीर कुंवारी कॉलोनी में जहाँ पर रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन करके 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। सऊद आपका शुक्रिया।
اس کے علاوہ کراچی میں پولیس اور حساس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے 4 غیر ملکی جاسوسوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے شہر میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے مختلف وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ کراچی میں حساس اداروں اور پولیس کی زیر حراست مبینہ افغان جاسوسوں نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان افغانستان کے صوبے ہرات اور غزنی میں تعینات تھے۔ گرفتار ملزمان میں ایک کمانڈر اور 3 سپاہی شامل ہیں۔ چاروں ملزمان چند ماہ پہلے غیر قانونی طور پر پاکستان پہنچے، جہاں انہوں نے پہلے کوئٹہ میں قیام کیا اور بعد میں ٹاسک کی تکمیل کے لیے کراچی میں قدم جمائے۔ ملزمان کو طالبان، سیکیورٹی فورسز اور مختلف مکاتب فکر کے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا ٹاسک ملا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ افغان جاسوسوں نے قتل کی 5 وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزمان کو کراچی میں اسلحہ تقسیم کرنے کا ٹاسک بھی ملا تھا۔ گرفتار ملزمان کا کمانڈر کراچی میں دیگر دہشت گرد گروہوں سے رابطے میں تھا، جبکہ ملزمان قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے لیے نانبائی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کی انکشافات کے بعد مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ اور اب آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے۔ رزاق آباد ٹریننگ سینٹر میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران سائیں کی زبان لڑکھڑا گئی۔ سائیں تقریب کے دوران شعر ادا نہ کر سکے۔ شعر پڑھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور پھر آگے بھول بھی گئے۔ پولیس اہلکار نے لقمہ دیا۔ سرسر محمود و ایاز یوں سائیں نے مسکراتے ہوئے مصرع مکمل کیا۔ جی ہاں بالکل، کراچی رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں آج پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ مہمان خصوصی تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے جب سند حوالے کی جا رہی تھی اہلکاروں کے، تو اس وقت بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ ایک اہلکار کو سند الٹی پکڑا دی گئی تھی سائیں کی جانب سے، اور اب سائیں شعر پڑھتے پڑھتے اگلا مصرع ہی بھول گئے۔ انہوں نے کیا کہا ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ یہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہی۔ یہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہی۔ تو یہ شعر تھا جو سائیں بھول گئے تھے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، کھڑے کون ہو گئے؟ محمود اور ایاز، ان دونوں کو تو سائیں بھول ہی گئے۔ شعر پڑھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، اور آگے کیا بولنا تھا وہ سائیں بھول گئے۔ سائیں نے اس شعر کو کس طرح سے مکمل کیا، ایک بار پھر سن لیجئے۔ یہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہی۔ یہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہی۔ کراچی میں رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی آج۔ سائیں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ مہمان خصوصی تھے۔ ایک اہلکار کو انہوں نے سند الٹی پکڑائی، خاتون اہلکار نے سلیوٹ مارا تو ان سے ہاتھ ملا لیا، اور جب شعر پڑھنے کی باری آئی تو آدھا شعر پڑھ کر بھول گئے۔ اس کے بعد انہیں لقمہ دیا گیا، بتایا گیا کہ آگے کیا شعر ہے، تو جا کر سائیں نے شعر کو مکمل کیا۔ آپ کو بتائیں کہ رزاق آباد ٹریننگ سینٹر میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، جہاں پر سائیں کی زبان ایک بار پھر لڑکھڑا گئی، اور اس طرح اکثر ہوتا رہتا ہے سائیں کے ساتھ۔ آج جو ہوا وہ کچھ یوں تھا کہ سائیں تقریب کے دوران شعر ادا نہ کر سکے۔ اور اب آپ کو ناظرین بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ راولپنڈی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرچ آپریشن کر کے 100 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے ساجد شیخ سے۔ ساجد، کیا بتائیں گے اس آپریشن کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، یہ تھانہ ساقہ آباد کا علاقہ ہے، اور یہاں کے جو جتنے بھی سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں، خاص طور پر ان میں شمس آباد، جو کالا خان، فیض آباد، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ہوٹل ہیں جہاں اور جو سرائے ہیں جہاں پر جو غیر قانونی طور پر لوگ جو مقیم تھے ان کے خلاف سرچ آپریشن کیا گیا، اور ایک سرچ آپریشن اساس اداروں کی نشاندہی پر کیا گیا، اور 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، اور ان گرفتار افراد میں تقریباً 30 سے زائد لوگ جو ہیں وہ
अफगान शहरी बताए जा रहे हैं, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनके गवाह भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन कल भी एक सर्च ऑपरेशन हुआ था, इसी उसमें 45 लोग गिरफ्तार किए गए थे और नेशनल एक्शन प्लान के तहत सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो अब पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रोज जारी है। जी अच्छा साजिद, जैसा कि आपने बताया कि 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या कहना है? क्या कोई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी डीएसपी सरदार बाबर से बात हुई है। उनका कहना यह है कि चूंकि कालदा तंजीमों के हवाले से जो इतलात हैं, वो जो उनकी सरगर्मियां हैं, वो उनके बारे में भी इतलात सामने आ रही हैं। उनकी जितनी भी सरगर्मियां हैं उनको हम उन पर नजर रखे हुए हैं और कुछ ऐसे अफराद भी हमने गिरफ्तार किए हैं जिनसे हमें मजीद इंकशाफात की भी तवक्को है। मगर फिल वक्त जो चूंकि एक इंतहाई सिक्योरिटी का मामला है और इस पर अब तमाम तर इतलात जो है वो शेयर नहीं की जा सकती, मगर जितने भी लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं इनमें खास तौर पर जिनमें जो अफगान शहरी हैं उनके ऊपर। साजिद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अहम खबर आ रही है भारत से। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर भारतीय जमीन तंग कर दी है। कभी गाय ज़िबा करने का इल्जाम लगाकर कमजोर मुसलमानों की जान ली जाती है, तो कभी सिर्फ मुसलमान होने पर पाकिस्तान चले जाने की धमकियां दी जाती हैं। आम मुसलमान तो एक तरफ, इंतहा पसंद हिंदुओं की चेहरा दस्तियों से नामी गिरामी मुसलमान अदाकार और खिलाड़ी भी महफूज नहीं रहे हैं। सच बोलने पर फिल्म स्टार आमिर खान और यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। अब हिंदू इंतहा पसंदी के शोले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी के घर तक भी पहुंच गए हैं और मोहम्मद शामी का ये कहना है कि उनके खानदान को खतरात लाहक हैं, उनके खानदान को धमकियां दी जा रही हैं और आपको यही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके इंतहा पसंद जो जमातें हैं वहां पर मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है वो दुनिया देख रही है। और अब जो बात सामने आई है वो ये सामने आई है कि फिल्म स्टार्स के बाद अब भारतीय क्रिकेटर जो कि मुसलमान हैं वो भी महफूज नहीं रहे हैं और खबर ये आ रही है कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी के घर अब धमकियां दी जा रही हैं और उनके खानदान को खतरा है, ऐसा उनका बताना है। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे कि भारत में गाय ज़िबा करने के इल्जाम लगाकर मुसलमानों को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने का वाकयात नए नहीं हैं। मोदी सरकार की सरपरस्ती से इन वाकयात में तेजी आ रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत में गाय ज़िबा करना एक जुर्म है जिसे सिर्फ मुसलमानों पर तशद्दुद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। भारत में किसी भी मुसलमान को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाना हो तो इस पर गाय ज़िबा करने का इल्जाम लगा दिया जाता है। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में गाय ज़िबा करने के इल्जामात लगाकर मुसलमानों पर तशद्दुद के वाकयात में तेजी आ गई है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रियासत उत्तर प्रदेश के गाँव के मुसलमान लोहार को गाय का गोश्त खाने के शुबे में जान से मार दिया गया। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने दारी गांव में मकतूल 50 साला मोहम्मद अखलाक के जवान साल बेटे दानिश को भी बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मकबूजा कश्मीर में एक ट्रक ड्राइवर को भी गाय ज़िबा करने का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज मध्य प्रदेश में भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने ट्रेन पर सफर करने वाले मुसलमान जोड़े पर हमला किया। अक्सर हल्के हैरान है कि ऐसे वाक़ये में जब भारत पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का मुतमन्नी है, मोदी सरकार मुसलमानों पर तशद्दुद में मुलव्विस इंतहा पसंद अनासिर की पुष्टपनाही कर रही है। और यहाँ नाज़रीन आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे कि सच बोलने पर भारतीय जनता पार्टी तो हाथ धोकर फिल्म स्टार आमिर खान के पीछे ही पड़ी हुई है। बीजेपी रहनुमा ने एक नया शोशा छोड़ दिया है। सुब्रमण्यम का यह कहना है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म पीके की प्रमोशन के लिए पाकिस्तानी एजेंसी से राबता किया। आपको अहम और फौरी खबर से आगाह करते चलें कि सच बोलने पर भारतीय जनता पार्टी तो हाथ धोकर फिल्म स्टार आमिर खान के बिल्कुल पीछे पड़ गई है। बीजेपी रहनुमा ने एक नया शोशा छोड़ दिया है कि सुब्रमण्यम का भी यह कहना है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म पीके की प्रमोशन के लिए पाकिस्तानी एजेंसी से राबता किया था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं भारत से। इससे पहले हमने आपको आगाह किया था कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने ये शिकायत की है कि उनकी जिंदगी को खतरा है, उनके खानदान को खतरा है, क्योंकि इंतहा पसंद हिंदू उन्हें तंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि फिल्म स्टार आमिर खान के पीछे भी भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं की जमात पड़ी हुई है। और अब ये खबर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर फिल्म स्टार आमिर खान के पीछे पड़ी हुई है
और बीजेपी रहनुमा ने एक नया शोशा ये छोड़ा है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म पीके की प्रमोशन के लिए पाकिस्तानी एजेंसी से राबता किया था। एक और अहम खबर देंगे आपको खेल के मैदान से, जहां कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम T20 एशिया कप में शिरकत के लिए भारत रवाना हो गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे वसीम मलिक से। जी वसीम मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी अब्दुल्ला, कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो अब आज से रवाना हो गई है भारत के लिए। वाघा के रास्ते ये टीम भारत जा रही है, जहां ये पहले एशियन कप T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जिसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें हैं। और ये तमाम मैचेस जो हैं भारतीय सूबा कराला के शहर कोची में होंगे और फाइनल जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची में होगा। इस हवाले से कौमी टीम के कप्तान अनीस जावेद ने जब हमारे साथ गुफ्तगू की रवानगी से कबल, तो उसका कहना था कि दोस्ती का पैगाम लेकर भारत जा रहे हैं, कौम की दुआओं से जीत कर लौटेंगे। हमने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तमाम शुबों में मुकम्मल तैयारी की है और कौम को मायूस नहीं करेंगे, माजी की तरह अब भी फतह के साथ वापस लौटेंगे। जी वसीम मलिक, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे कि भारत में पत्ता भी टूट जाए तो इल्जाम पाकिस्तान पर धरना भारत का वतीरा है, लेकिन पठानकोट हमले के बाद पहली बार भारत की जानिब से कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा देखने में आ रहा है। अरकान पार्लियामेंट भारतीय रवैये में इस तब्दीली को किस तरह देखते हैं, ये बताएंगी इस्लामाबाद से ज़ारा काजी। भारत में गोली चले या धमाका हो, सूरमा सरकार की जानिब से अपनी हर नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पर धरना भारत का वतीरा रहा है। मगर पठानकोट में भारतीय एयरबेस पर हमला हुआ। इस हमले पर भारतीय मीडिया तो हस्बे रिवायत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा, लेकिन भारतीय हुकूमत ने पहली मर्तबा कुछ जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है। इस तब्दीली को इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट भी महसूस कर रहे हैं, मगर बड़े मोहतात अंदाज में। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तवील अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है वो खारजा सतह पे स्पेशली पाकिस्तान के साथ एक जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, क्रिश्चियंस के साथ, फॉरेनर्स ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, अगर आपको याद हो तो तमाम दुनिया में एक शोर उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, तो वो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी उनके ऊपर आना शुरू हुआ था। मेरे ख्याल में कोई मुस्तकिल इनका जो अंदाज है, जो इंडिया के तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद अब तक वो कभी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन से रहे। अगर डिप्लोमेसी भी है तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक का जो मसला है दहशतगर्दी का, वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर किया गया है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि भारत के रवैये में मुस्बत तब्दीली में मुस्तकिल मिजाजी भी होनी चाहिए, वरना मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के पुरअमन हल तक सब बेसूद है। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि खित्ते में अमन के कयाम के लिए पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी बेहद जरूरी है और इस बेहतरी को लाने के लिए मुस्तकबिल में भी लचक का मुजाहरा करना होगा। कैमरामैन जाहिर गुल के साथ ज़ारा काजी, जाग, इस्लामाबाद। खबरों में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए जाग। जाग में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं ज़ारा काजी से। जी ज़ारा काजी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद के फिट 4 कॉलेज के में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह 9 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, जो कि शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिवायती हल्ला गुल्ला और हलचल नजर आ रही है और वोटर्स और सपोर्टर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि खवातीन की मखसूस 17 नशिस्तें हैं, जिन पर 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। दूर किसान की 3 नशिस्तें हैं, जिस पर 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नौजवानों की 3 नशिस्तों पर 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। गैर मुस्लिम की 3 नशिस्तें हैं, जिस पर 11 और टेक्नोक्रेट की 1 नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जो होगा वो होगा। अभी तक यहाँ पर अमन तरीके से इंतखाबी अमल जो है वो जारी है। जी, इंतखाबी अमल अभी जारी है। ज़ारा काजी अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।
और यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि महकमा लाइव स्टॉक ने रावलपिंडी में कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 50 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे साजिद शेख से। साजिद बताइएगा, अहम गिरफ्तारी है, अहम कार्रवाई हुई है, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? महकमा लाइव स्टॉक ने रावलपिंडी में कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 50 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया है। आपको साथ साथ ये भी बताएं कि महकमा लाइव स्टॉक ने ये कार्रवाई की है, एक गाड़ी से 50 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया है। मुलजिम गोश्त झंग से रावलपिंडी ला रहा था। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अजमल बताया जाता है। मरी रोड से शख्स को गिरफ्तार किया गया है और आपको बताएं कि महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, मुजरे सेहत गोश्त बरामद हुआ है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे साजिद शेख। साजिद शेख, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, ये मरी रोड पर थाना वारिस खान के इलाका है, वहाँ उसकी हदूद में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम अजमल है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और इसके कब्जे से 50 मन यानी कि 2000 किलोग्राम मुजरे सेहत मुर्दा का गोश्त जो है वो बरामद हुआ था और उससे जो गोश्त था उसको भी तलब कर दिया गया और इस मुलजिम के खिलाफ अब हस्बे-ज़ब्ता कार्रवाई भी की जाएगी, मगर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, गोश्त को भी तलब कर दिया गया और वारिस खान में जो है इस मुलजिम को ज़ेर हिरासत रखा गया है। जी साजिद शेख, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ने डेरे जमा लिए हैं। दर्जा हरारत कम होने के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि हद निगाह महदूद होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब में एक बार फिर धुंध छा गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत वस्ती और जनूबी पंजाब के इजला को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। हद निगाह महदूद होने के बायस लाहौर से रहीम यार खान जबकि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन पर शदीद धुंध रही। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मियां चन्नू से रहीम यार खान तक शदीद धुंध के बायस हद निगाह 0 हो गई, जबकि पिंडी भटिया से फैसलाबाद मोटरवे पर हद निगाह 40 से 50 मीटर के दरमियान रही। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। धुंध के बायस परवाजों के शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी ताखीर का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं, जबकि धुंध आइंदा 2 से 3 रोज तक पंजाब को अपनी लपेट में लिए रखेगी। और दूसरी जानिब फैसलाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज से होने वाली रिमझिम ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। भीगे भीगे मौसम का अहवाल जान लेते हैं खावर अब्बास से। जी खावर अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज में फैसलाबाद में जो है सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो गया। 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सर्द हवाएं भी चल रही हैं। शहरी इस मौसम से खासे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो चाय की दुकानों का, पकौड़े समोसों की दुकानों का और पार्क्स का रुख कर रही है और इस मौसम से जो है लुत्फानंदोज हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त पार्क में एक शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे मौसम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत हुई है कि ये पिछले दिनों जो बारिश हुई है, इस बारिश ने तो 4 चांद लगा दिए हैं और सही सर्दी जो है वो अब आई है। और जैसा कि अभी मैं बात कर रहा हूँ और मेरे मुंह से वो हवा सी निकल रही है, तो ये मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि अब बीमारियां भी कम हो गई। आपने शहरियों की बात सुनी, इनका कहना है कि अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो हुआ है मगर बारिश की वजह से जो मौसमी बीमारियां उनसे भी जान छूट गई है और हम जो है इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे कि हुक्काम के दावे धरे रह गए, कराची की शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए। टीपू सुल्तान सिग्नल पर धंसने वाली सड़क की मरम्मत अभी तक शुरू नहीं हो सकी। कराची में कहीं सड़कों पर पानी जमा है तो कहीं गड्ढे पड़ गए। शहीद मिल्लत रोड पर नाले पर बनी सड़क धंस गई, लेकिन मरम्मत अभी तक मुकम्मल ना हो सकी। इसी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये बहुत परेशानी की आलम है। ये रोज का काम हो गया, तकरीबन रोज काम हो रहा है। यहाँ पर भी और जेल चुरंगी पे भी हो रहा है काम। देर हो जाती है कॉलेज की, ऐसे ये रास्ता ऐसा बंद होता है, ट्रैफिक जाम होता है, पूरा सड़कों का हाल ऐसा है। अब क्या करें? ये इसकी वजह जो मुझे महसूस होती है वही होती है, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, वहाँ खुदाई हो रही है। जब खुदाई होती है तो नीचे पानी का प्रेशर जो होता है वो उस तरफ मूव करता है। डायरेक्टर KMC के मुताबिक मरम्मत मुकम्मल होने में मजीद 24 घंटे लग सकते हैं। आज मुश्किल है, कल तक कोशिश करेंगे कारपेट हो जाए या रात में हो जाए, जो भी है इसका कोशिश है कि इनका काम पहले खत्म हो जाए, वाटर बोर्ड वालों का,
फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या पोजीशन रहती है। शहीद मिल्लत रोड पर मरम्मत के काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी उठाना पड़ रही है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हुकाम ने नॉर्थ नाजिमाबाद में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब जुमेरात को होने वाले धमाके को मशकूक करार दे दिया। हुकाम का ये कहना है कि सीवरेज लाइन में मौजूद गैस से इतना जोरदार धमाका नहीं हो सकता। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। जुमेरात की शब नॉर्थ नाजिमाबाद में बोर्ड ऑफिस के करीब हुआ धमाका। 3 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस और इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये प्लांटेड धमाका था, ना खुदकश और ना ही किसी ने क्रैकर मारा। ये तो सीवरेज लाइन में मौजूद गैस का धमाका था। वाटर बोर्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इफ्तिखार का कहना है कि मुख्तलिफ बातें सुनने में आ रही हैं, मगर सीवरेज लाइन में मौजूद गैस में आग तो लग सकती है, ऐसा धमाका नहीं हो सकता। कोई क्रैकर मारा, कोई कहते हैं रक्शे में बम रखा था, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है वहाँ पे, लेकिन गैस इटसेल्फ कोई धमाके से नहीं हुई। इसमें ऐसी गैस पैदा नहीं होती जो इटसेल्फ उड़ी है। इसमें ये जरूरत है सल्फर होती है, जिसमें अगर आग लगाएं तो आग लग जाती है। आबादी बेंदा बढ़ रही है तो उसकी वजह से लोड आ रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा है। इनका कहना था कि शहर की बढ़ती आबादी के मुताबिक सीवरेज की मंसूबाबंदी ना की गई तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। और अब आपको बताएंगे कराची में धंसने वाली शहीद मिल्लत रोड की मुरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल खान से। सुहेल बताइएगा, मरम्मत तो शुरू नहीं हो सकी, शहरी क्या कहते हैं, कितनी परेशानी है उन्हें? जी बिल्कुल, यहाँ पे गुज़िश्ता रात जो है टीपू सुल्तान रोड और शहीद मिल्लत रोड के मेन अकब जो लिंक करती है रोड, उस पे जो है वो यहाँ पे सीवरेज की लाइन बैठ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मरम्मती काम जारी है। यहाँ पे अभी हमारे वाटर बोर्ड हुकाम से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मरम्मती काम को कंप्लीट होने में तकरीबन 24 घंटे लगेंगे, मतलब ये कल जो है वो इस टाइम तक जो है ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है वो एक डंपर पहुँचा था जिसने जो है वो मिट्टी वगैरह गिराई है और तकरीबन जो है अब यहाँ पे तामीराती काम यहाँ पे जारी है। इसमें यहाँ पे इस तामीराती काम की वजह से एक तरफ तो ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर हो रही है, क्योंकि यहाँ से शहीद मिल्लत से जो रोड हमारी यहाँ जाती है इस तरफ बलोच कॉलोनी की तरफ, उसको पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया और वहाँ से डाइवर्जन निकाल दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी यहाँ वाटर बोर्ड हुकाम से बात हुई कि आखिर यहाँ पे क्या मामला हुए, किस वजह से ये सीवरेज की लाइन बैठी, तो उन्होंने कहा कि ये सीवरेज की लाइन बहुत नाकिस हो चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी। ये 24 कतर की लाइन थी और इसकी जो है वो तकरीबन इस वक्त जो अफेक्टेड एरिया है वो तकरीबन 160 से 165 फीट का जो एरिया है, डिस्टेंस है, वो यहाँ पे मुतासिर हुआ है और इसको जो है वो अभी मरम्मत करने का काम जारी है। जी ठीक है, कराची का हाल ये है कि कहीं मैन होल्स पर ढक्कन नहीं होते तो कहीं सीवरेज की लाइन फट जाती है और अब भी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 24 घंटे लग सकते हैं इसकी मरम्मत को। यहाँ से जो शहरी गुजर रहे हैं, जो मुसाफिर गुजर रहे हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना है। सुहेल खान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के दावों के बरक्स मुल्तान के बड़े से बड़े अस्पताल में धड़ जुड़ी बहनों को अलहदा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए बच्चियों को ऑपरेशन के लिए लाहौर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। मुल्तान के निजी अस्पताल में खातून ने बैक वक्त 3 बच्चों को जन्म दिया। नन्हे मेहमानों में एक भाई और 2 बहनें हैं, लेकिन दोनों बहनों के धड़ आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चियों के ऑपरेशन के हवाले से मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। MS चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स डॉक्टर शाहिद बुखारी का कहना है कि धड़ जुड़ी बहनों का ऑपरेशन मुल्तान में मुमकिन नहीं, इसीलिए बच्चियों को चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाहौर मुंतकिल करने का फैसला हुआ है ताकि वहाँ ऑपरेशन किया जा सके। और अब आपको बताएंगे कि मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा का एक और मरीज दम तोड़ गया है। मूजी मर्ज जहां बहाक होने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा के शुबे में एक और मरीज लाया गया जो दम तोड़ गया। DG खान के सुल्तान को चंद रोज कबल सीजनल इन्फ्लुएंजा से मुतासर होकर अस्पताल लाया गया था, जहां वो दम तोड़ गया। निश्तर अस्पताल में सीजनल इन्फ्लुएंजा के शुबे में 28 मरीज लाए गए हैं, जिनमें से 19 मरीजों में मरज की तशखीस हुई। ताहम इस वक्त निश्तर अस्पताल के सीजनल इन्फ्लुएंजा वार्ड में 6 मरीज जेर इलाज हैं। 6 मरीज लाए गए। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और जनाब, दुकान में लूट मार करके भाग जाएंगे
कभी पकड़े नहीं जाएंगे, यही सोच थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा की आंखों ने सब कुछ सामने आया कर दिया। कराची में लुटेरों के साथ क्या हुआ आप भी देख लीजिए। ये है कराची का इलाका जमजमा। जहां दुकान में डकैती हुई। दो मुल्जिमान ने दुकान के अंदर लूट मार की। दो बाहर खड़े रहे कि कोई खतरा हो तो साथियों को बताएं। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर दुकान लूटी और बआसानी भाग गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरों ने चेहरे बेनकाब कर दिए। पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 मुल्जिमान पकड़ लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का साथी इमरान उर्फ भैया मफरूर है, जिसे जल्द पकड़ लेंगे। अब आपको बताएंगे कि मुल्तान में पीआई के सीनियर टेक्नीशियन पुरस्रार तौर पर लापता हो गए हैं। अहल खाना ने अगवा किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के सीनियर टेक्नीशियन चौधरी अख्तर पुरस्रार तौर पर लापता हो गए हैं। अहल खाना के मुताबिक 2 रोज कबल चौधरी अख्तर घर से ऑफिस गए, लेकिन वापस नहीं आए। उन्हें अगवा किए जाने का खदशा है। अहल खाना अगवा के मुकदमा दर्ज कराने थाना कुतुबपुर और थाना कैंट पहुंचे। अहल खाना ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस मामले पर ताउन नहीं कर रही। और पंजाब हुकूमत के बुलंदोबांग दावे और बड़े ठाट बाट, लेकिन रावलपिंडी के सरकारी हाई स्कूल में बच्चे बिछे हैं टाट। खुले आसमान तले बैठकर पढ़ते बच्चे, जब हो बारिश करते छुट्टी। जमीन पर बैठकर बच्चे गर्मी सर्दी में बीमार भी पड़ जाते हैं। मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं साजिश शेख की इस रिपोर्ट में। हम तालीम ज़मीन पर बैठ के क्यों हासिल करते हैं? शहबाज शरीफ आप सोए हुए हैं। बुलंदोबांग दावे और बड़े ठाट बाट, लेकिन रावलपिंडी के गवर्नमेंट एमसी बॉयज हाई स्कूल टोगरता में बिछे हैं टाट। सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर पढ़ने वाले तलबा अरबाब इख्तियार को दे रहे हैं दुआइयाँ। फर्श पे बैठते हैं, उनको ठंड लगता है। जनरल जहीर साहब, चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे स्कूल की तरफ बेहतर से बेहतर तवज्जो दें। सुबह से बहुत ठंड होता है। असातिज़ा का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत वो बच्चों के लिए जो कर सकते थे किया, मगर मुतलका हुकाम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पर तैयार ही नजर नहीं आते। हमारे पास टोटल तादाद जो है वो लगभग 1100 है बच्चे हैं, और जिनमें से हमारे 22 सेक्शन है। हमारे 22 में से 9 क्लासरूम हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो सारे बाहर ग्राउंड में बैठते हैं। हमारे स्कूल में पीने के लिए साफ पानी नहीं था, जो हमने अपनी मदद आपके तहत बोरिंग करवाई है। कमरा ना होने की वजह से हम एक ही जगह बिठाए हैं और उसको बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि बारिश होने की सूरत में जमीन पर बैठने वाले तलबा को छुट्टी दे दी जाती है, जिसके बायस 200 से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, मगर किसी को एहसास नहीं। हुकूमत के दावे अपनी जगह, मगर शहर के पोश एरिया में बच्चों का इंतहाई सर्दी में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करना भी एक सवालिया निशान है। कैमरामैन अरसलान सिंह के साथ साजिद शेख, चाक, रावलपिंडी। और अब आपको बताएंगे समंदर में बढ़ती हुई आलूदगी के कई असबाब हैं जिनकी वजह से आबी हयात शदीद खतरात से दो चार हैं। सोन मियानी से लेकर बदीन तक सैकड़ों मील लंबी कोस्ट लाइन में कराची के साहिल इलाके सबसे ज्यादा गंदगी का शिकार हैं, जबकि लाखों गैलन आलूदा पानी के रोजाना इखराज से मछलियों के शिकार में भी खातिर खा कमी आई है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुजाहिद शाह। कुर्रे अर्ज का 1/3 हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है। वो समंदर जो अपने अंदर एक अलग ही दुनिया आबाद रखते हैं। हजारों अकसाम की आबी हयात और पौधे लाखों लोगों के जरिए करोड़ों इंसानों की खुराक बनते हैं, मगर अब समंदर शदीद आलूदगी का शिकार हैं। कलेक्टर के साथ में देखो, इधर देखो, जिधर भी जाओ इतना कागज, ये पन्नी वगैरह, शॉपर वॉपर, पूरा दरिया समंदर भरा हुआ है। अभी मछली के लिए जाल फेंकते हैं तो कितना बहुत आता है, मछली कम आता है। बड़ी बड़ी जो आई है ना कश्ती उधर बाहर मुल्क से, पाकिस्तानियों ने मंगाई है, ये समझो कि पूरे दरिया का खाना खराब कर दिया इन लोगों ने, समुद्र का। अभी हम जाते हैं, हमको माल कम मिलता है। किनारों से मछलियों की दूरी के दीगर कई असबाब भी हैं, रिवायती तरीकों से शिकार का ना होना और ममनुआ जाल का इस्तेमाल भी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गहरे समंदरों में मछलियों के अम्बाल लगे हुए हैं।
डीप सी समुंदर के डेजर्ट कहलाते हैं, यानी वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ चंद मछलियाँ होती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सब डीप सी की तरफ जाएंगे और कोई हम बहुत कमा लेंगे और जितना आगे चलते जाएंगे मछली होंगे, आगे कोई मछली नहीं होती। सोनमियानी से लेकर केटी बंदर तक पाकिस्तान का साहली इलाका इस वक्त आबी हयात के लिए डेंजर जोन बन चुका है। बड़े बड़े तेल बरदार जहाज और हजारों की तादाद में मौजूद लांचों से खारिज होने वाला फुजला और शहरों से लाखों गैलन रोजाना की बुनियाद पर बगैर ट्रीटमेंट किया हुआ जहरीला पानी समंदर को गंदा कर रहा है। समंदर लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया है, मगर माहौलियाती तहफ्फुज और सफाई न होने की वजह से किनारों से मछलियां कम होती जा रही हैं। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मुजाहिद शाह, जाग, इब्राहिम हैदरी, कराची। और उमैर पहलवान ने मालू पहलवान को शिकस्त देकर शेरे पंजाब दंगल का टाइटल अपने नाम कर लिया। तफसीलात लाहौर से सना अमजद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में सजा शेरे पंजाब और रुस्तमे जमा गामा पहलवान दंगल, जिसमें नामवर पहलवान अखाड़े में उतरे और मुखालिफ को हराने के लिए तमाम हरबे आजमाए। दंगल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। उमैर पहलवान ने मालू पहलवान को कुंडी डालकर चारों शाने चित कर दिया और शेरे पंजाब दंगल के हकदार करार पाए। कुश्ती 21 मिनट तक जारी रही। ये जो दंगल हुआ है पूरे पाकिस्तान में ऐसे दंगल हो तो बहुत शौक बढ़ जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा इंशाअल्लाह, ऐसे ताउन करते रहे तो। पहलवानों का कहना था कि दंगल मुकाबलों से दम तोड़ता हुआ बड़े सगीर का रवायती खेल एक बार फिर जिंदा हो गया है और वीरान अखाड़े फिर से आबाद हो गए हैं। ऐसे दंगल पहलवानों के लिए होते रहेंगे तो तब भी पहलवानी ऊपर आएगी। ये अरसा दराज ये कम होता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, वज़ीर आला साहब जो है वो दंगल कम हो रहे हैं, उसकी वजह से पहलवानी बहुत कम हो रही है। जब तक इनको पहलवानों को सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, तब तक ये शौक ऊपर नहीं आएगा। जीतने वाले पहलवानों में शेरे पंजाब के टाइटल के साथ नकद इनामात भी तकसीम किए गए। दाव पेच और जोर आजमाइश से एक दूसरे को चित करते इन पहलवानों की शायकीन ने भी खूब दाद दी। शायकीन का कहना है कि इस तरह के दंगलों से सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। कैमरामैन गुल समी के साथ सना अमजद, जाग, लाहौर। और अब आपको बताएंगे लाहौर में रुस्तमे जमा गामा पहलवान के टाइटल के लिए 40 पहलवान आज जोर आजमाई करेंगे। इस तक हमारी नुमाइंदा सना अमजद पंजाब स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सना, बताइएगा तैयारियां कैसी देख रही हैं और आज कितने मुकाबले होंगे? जी, मैं इस वक्त पंजाब स्टेडियम में मौजूद हूं और मैं आपको बताऊं कि आज जो है एक बड़ा मुकाबला होने वाला है भोला पहलवान और आरिफ पहलवान के दरमियान। और यहाँ पे कजाफी स्टेडियम में जो है तैयारियां भरपूर हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे जो है अखाड़ा भी तैयार हो चुका है और भोला पहलवान और आरिफ पहलवान के अलावा जो है 40 और भी पहलवान हैं जो आज अपनी जोर आजमाई करेंगे और एक दूसरे को चित करके जो है जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। और तकरीबन जो है 18 से 20 मुकाबले होंगे। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि क्या लगता है आज आपको दो बड़े मुकाबले होने वाले हैं। भोला पहलवान पिछले 14 साल से मुसलसल जो है रुस्तमे पंजाब रह चुका है, तो आज आपको लगता है कि वो जीतेंगे? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भोले पहलवान की जो अभी तक वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई भी पहलवान जोड़ नहीं है, वो बहुत मेहनती पहलवान, उसने मेहनत किया और अपना एक मुकाम बनाया है। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल लिए हैं। वो रुस्तमे पाकिस्तान है, रुस्तमे एशिया है, रुस्तमे इंडो पैक है। जो दूसरा उसके मध्य मुकाबल आरब पहलवान है वो भी खासी मेहनत करके आया है। इंशाल्लाह मुकाबला बड़ा अच्छा होगा, टफ फाइट होगी। हम हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने 2008 से ये सिलसिला टूटा था उसको दोबारा से शुरू कर दिया है। अच्छा, कुछ और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कहाँ से आए हैं आप और कैसा लग रहा है आपको लाहौर में एक दफा बहुत सालों के बाद फिर से इस तरह के अखाड़े सजे हैं जो कि वीरान हो चुके थे? ये आपको नोमी ने अच्छी बात बताई है। ये 2008 से पाको का जब मुकाबला होता मैं सिक्योरिटी करता आ रहा हूँ और आजाद गुल साहब एडवाइजर उनके साथ दोस्त हैं मेरे और कोते पे फाइज हैं, अभी भी ये करवा रहे हैं वो। तो उस वक्त से हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत की अगर सरपरस्ती रहे तो ये बहुत ऊपर जा सकते हैं। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चले, इनको फेडरेशन भी दे पैसे, क्योंकि ये लोग हैं कि ये डिजर्व करते हैं जो जब से ये लगे हुए हैं। तो हमें चाहिए, सबको मिलकर चाहिए कि इनका साथ देना चाहिए। और बाकी जी, लाहौर का जो मौसम है काफी सर्द है, लेकिन आज काफी स्टेडियम का जो मैदान है वो फिर से एक बार काफी गर्म रहने वाला है। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने पुरजोश हैं आप आज के मुकाबले को लेके? क्या कहेंगे, इस तरह के दंगल होने चाहिए? दंगल इन्हां दी मियां साहब मतलब चांग के माशाल्लाह
ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਐਮਪੀਏ ਕੋਟ ਖਵਾਜਾ ਸਈਦ में मलक परवेज साहब ने ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ। जी आपने देखा कि यहाँ पे शायकीन की काफ़ी बड़ी तादाद है जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम का रुख कर रही है और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो है मैदान सजने वाला है और तकरीबन 40 पहलवान हैं जो आज शिरकत करेंगे इस मुकाबले में और तकरीबन जीतने वाले जो पहलवान हैं उन्हें नक़द इनामात से भी नवाजा। आपने हमें आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल की 5 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में जारी कश्मीरी सकाफत से मुज़य्यन खूबसूरत नुमाइश का अहवाल जानते हैं आयशा नूर से। जी आयशा नूर, नुमाइश में कश्मीरियों की सकाफत को किस तरह से उजागर किया गया है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में एक तकरीब मुनक्किद की गई है जो कि कश्मीर कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो हम जिस स्टॉल पे खड़े हुए हैं वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी कढ़ाइयों वाले जो हैं वो जोड़े रखे गए हैं और हाई प्राइसेस होने के बावजूद लोग जो हैं इनमें काफ़ी सारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ख़वातीन की दिलचस्पी का जो है वो बायस बन रही हैं। जो कढ़ाई वाले सूट्स हैं, बैग्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी कल्चरल चीज़ें जो कि कश्मीर के कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर एक मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये नुमाइश का जो है एहतमाम क्यों किया, क्या सोचा उन्होंने और ये इतनी खूबसूरत नुमाइश उन्होंने इस्लामाबाद के लोगों के लिए यहाँ पर लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर इतनी खूबसूरत आपने नुमाइश लगाई है जिसमें हम शॉल्स भी देख रहे हैं कश्मीरी कढ़ाई वाली और बैग्स भी देख रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा इदारा है, उसके अंडर हम ये कर रहे हैं और मैं पीस एंड कल्चर की को चेयरपर्सन हूँ, रेहाना हुसैन मलिक। इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इनकी कीमतें देखी हैं तो ये कीमतें बहुत मुनासिब हैं इस लिहाज से कि ये श्रीनगर से आई हैं सब चीज़ें और ये बिल्कुल कॉस्ट प्राइस है। इसके अंदर कोई पहलू नहीं है कि हमारी कोई यहाँ कोई बिजनेस का। ये देखें इधर ये जो हैं क्या कहते हैं ये डेकोरेशन की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सब कश्मीरी हैं। जी बिल्कुल, डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बैग्स हैं और हैंडमेड चीज़ें हैं और इनका मकसद यही है कि कश्मीरी कल्चर को जो है वो ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका आयशा। और मगरबी अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो के दारुल-हुकूमत ओवागागाडो में गैर मुल्कियों के ज़ेर इस्तेमाल होटल पर मुसल्लह अफराद के हमले में 20 अफराद हलाक हो गए। वजीर समेत 63 यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। पेरिस, कैलिफोर्निया, इस्तांबुल और जकार्ता के बाद अब निशाना बना बर्किना फासो का दारुल-हुकूमत। ओवागाडुगो में गैर मुल्कियों के ज़ेर इस्तेमाल होटल पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। पहले होटल के बाहर 2 जोरदार धमाके हुए, फिर हमला आवरों ने गाड़ियों को आग लगाई, जबरदस्त हवाई फायरिंग की और लोगों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में आई तो होटल पर कब्जा छुड़ाने और यरगमालियों को रिहा कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज हुआ। हमले का निशाना बनने वाला होटल अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ और फ्रांसीसी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल रहता है। मुसल्लह अफराद ने होटल के करीब ही वाक़े कैफे पर भी हमला किया जहाँ से 10 लाशें बरामद हुई हैं। अल-कायदा इन मगरिब नामी ग्रुप ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और अब आपको बताएंगे फेयर हॉल कराची में फूलों की नुमाइश में इफ्तिताह के लिए पहुंचना तो था मिनिस्टर को, मगर आन पहुंचे एडमिनिस्ट्रेटर। सुहेल खान की रिपोर्ट देखिए। कराची का फेरियर हॉल हो गया खुशबुओं से माला माल। फूलों की नुमाइश से हर जानिब बिखरे रंग रंग, फूलों की सजावट भी थी दबंग। नुमाइश का इफ्तिताह करने वजीर बल्दियात को आना था, मगर उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर कराची आ पहुंचे। जाम खान शोरो क्यों नहीं आए, एडमिनिस्ट्रेटर ने वजह बता दी। मिनिस्टर साहब कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से नहीं आ सके, तो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी भी आया हूं और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी की है। फूलों की नुमाइश को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क का रुख किया। जैसे ना फूलों की दुनिया में आ गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पे पहली दफा आए, हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग पूरा घूमेंगे, हम लोग को बहुत मजा आएगा, फूल सारे देखेंगे और हम लोग यहीं पे जाएंगे। अच्छा लग रहा है मुझे, घर जाने की मुझे दिल्ली नहीं कह रही, मैं बोल रही यहाँ पर ही बैठी रहूँ। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि फूलों की मुख्तलिफ इक़साम पर मबनी नुमाइशों का एहतमाम करे। कराची के फेरियल हॉल में सजी गुले दाऊदी की नुमाइश, यहाँ पे आने वाले शहरियों का कहना है कि ऐसी नुमाइशों को मुतवातिर होना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद शोएब के साथ सुहेल खान, जाग,
कराची। जाग के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, जाग के साथ।